Hello, viewer and learners. You all are welcome to today's session that is on MA Entrepreneurship Program. So we are going to have a session on MA Entrepreneurship Program in which we are going to discuss about the first course that is a business environment, and along with me my colleague and program coordinator Ms. Asha Yadav. We will discuss about today's topic, that is the business environment and socio-cultural issues of the business environment. So before that, we would also like to share some very critical, very important aspects of about this program. That any learners, any viewers who have already joined this program, as well as who are willing to join, because admission is on for this program, and the basic eligibility for joining this program for the viewers is that any graduate from any discipline can join this program. It is not necessary one should be from the commerce discipline or from science discipline. So any graduates can join this program if he has completed the degree successfully. The other important aspect is that about this program is a very unique program. First time I think so in this country that having the components of entrepreneurships and eligibility in general for the any graduates. It's basically 2-year program having 15 courses and 2 projects. So each year there is a 1 project, and the second year also, and similarly we have another project. And also as per national education policy, we also have made a provisions for exit options. So any learners at any point of time, one feel that after completing the first years to leave this program and with some degree certificates. So such type of students will get a postgraduate diploma in entrepreneurships. And ऐसे विद्यार्थी जो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को, तो उन्हें दूसरे साल में अपनी सारे कोर्सेज को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के उपरांत उन्हें मास्टर्स की डिग्री मिलती है. तो आशा करते हैं कि जो विद्यार्थी जो इस प्रोग्राम से एडमिशन्स ले चुके हैं वो अपने कोर्सेज को पढ़ाई कर रहे होंगे, उस पर असाइनमेंट्स बना रहे होंगे, और जो हमने प्रोग्राम गाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं, मेल के थ्रू भेजे हैं, और टाइम टू टाइम वी कीप ऑन डिस्कसिंग थ्रू आइदर ऑन टीवी और रेडियोस और थ्रू मेल. That every learners who have joined this program, they are supposed to write assignments before appearing in the exams. So or any time if one can feel that they have a doubt, so they can write to us, they can contact to their regional centers. We have regional centers across the country, and particularly for this program, so RC's Vatakara is there, who conducts these counseling sessions from time to time. And from here at headquarter, me and Asha, and also will invite sometime experts also from the industries to just to make you aware about the business environment, how is that going, if any persons wants to set up a startup, what one can do. So from time to time we call the experts also in our in this for to make you understand. So let us begin about today's sessions. The main objective of this today's session is to make you aware about what does the mean business environment, what are the important factors are there, what are the basics dimensions of any business environment, what are the concepts of business environment. So let us we would like to understand, Asha, to make our learners understand to what are the basic dimensions of the business environment. Actually, first of all, we will try to understand what is business environment. Environment, it means whatever surrounds you. तो बिज़नेस को जो चीज़ें सराउंड करती हैं, उसके चारों ओर होती हैं, वो सारा बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है.
उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और और वो जो है बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए आपको अपने बिजनेस के चारों ओर क्या चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने इन्वायरमेंट से, बिजनेस इन्वायरमेंट से अवेयर होंगे, तभी आप उन अपनी स्ट्रैटेजीज, आपकी जो हैं, जो प्लानिंग हैं, वो इस तरह से आप फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे, ताकि जितने थ्रेट्स हैं उनको टैकल किया जा सके और आपके बिजनेस को ग्रो किया जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नेचुरली है कि आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा और वो प्रॉफिट तो आप गेन कर ही नहीं सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए सबसे पहले एमए एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है उसमें सब फर्स्ट कोर्स को ही बिजनेस एनवायरनमेंट के फॉर्म में रखा गया है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है, इसमें इसको क्लासीफाई किया गया है, कई तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक क्लासिफिकेशन ये है कि बिजनेस जो होता है वो उस बिजनेस एनवायरनमेंट में एक नॉन इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो ऑब्वियस ही है, पैसे से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगी। और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बाकी फैक्टर्स आते हैं। बाकी फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, आपको सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, और आपका ये क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेली चेंज होती है, तो आपको उस टेक्नोलॉजी को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, अभी क्या है, और हम किस तरह से, पहले हम कैश के फॉर्म में पेमेंट करते थे, आज हम डिजिटल फॉर्म में पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस पे एक्ट करना ज़रूरी है, तभी आप बेटर परफॉर्मेंस बिजनेस में दे पाएंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन एक और होती है जिसमें कहते हैं एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, मैक्रो एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। तो अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या चीजें होती हैं, मैक्रो मीन्स बड़ी चीज, माइक्रो मीन्स छोटी सी चीज। अब माइक्रो में मतलब छोटी सी चीज क्या है, जो सबसे पास में हो, आपके बिजनेस के आसपास हो। तो आपके आसपास क्या चीजें होंगी, आपका सप्लायर होगा, आपके कस्टमर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे आपके, और इंटरमीडियरीज होंगे आपके, पब्लिक्स होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी माइक्रो में आ जाएंगी। और थोड़ा सा जो दूर, मतलब जिनका इम्पैक्ट थोड़ा आउटर लेवल पे पड़ेगा, वो होंगे आपको सोशियो एनवायरनमेंट, आपको सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और इसी तरह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को के लिए अवेयर होना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, मतलब होता है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें सारी फोर्सेस जो होती हैं वो मिलकर इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं आपके बिजनेस पर। जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसमें आपका, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं, आपको सोशल फोर्सेस भी हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्स, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारी की सारी आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी, उस पर इम्पैक्ट डालेंगी, और आपकी परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग तय होगी कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म बिजनेस में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि आप में उसमें टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस को आपको ध्यान में रखना है बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड जनरल एनवायरनमेंट, और स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर फोर्सेस हैं जो डायरेक्ट आपके बिजनेस पर बियरिंग्स हैं, बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो जैसे आप सपोज करिए हमने एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में हमने ग्रोसरी स्टोर खोला,
और हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, हमारे आसपास में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद किसी ने आपके बगल में ग्रोसरी स्टोर खोल दिया। तो अब क्या हुआ कि वो जो कस्टमर केवल आपकी शॉप पे आ रहे थे, आपके स्टोर पे आ रहे थे, अब वो कस्टमर को ऑप्शंस मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया और वो बगल में जाने लगे। तो ये स्पेसिफिक फोर्स है जो आपका मतलब पर्टिकुलरली आप पर को ही इम्पेक्ट कर रही है और बाकी शॉप्स को इम्पेक्ट नहीं कर रही है। दूसरा है एक जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में मान लीजिए ग्रोसरी की जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। तो उसमें क्या हुआ, जितनी ग्रोसरी की शॉप्स थी सब पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। चीजें महंगी हुई, जीएसटी बढ़ा, चीजें महंगी हुई। चीजें महंगी होने से क्या होता है, परचेजिंग पावर लोगों की घटती है। और जब परचेजिंग पावर घटेगी तो नेचुरली है आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो पहले थी। तो ये दूसरी करेक्टरिस्टिक है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी स्पेसिफिक फोर्सेस हो सकते हैं और कौन कौन से जनरल फोर्सेस हो सकते हैं। तीसरा एक होता है इंटर रिलेटेडनेस या इंटर डिपेंडेंट। अब जैसे सपोज करिए अभी कोविड पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक में क्या हुआ था कि लोगों को सिखाया गया कि आपको की लाइफ स्किल्स क्या हैं, कैसे आपको अपने हाथों को वॉश करना है, कैसे आपको रहना है। तो मतलब हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी। जब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई तो इसका इफेक्ट केवल उस समय तक ही नहीं रहता है, बल्कि उससे रिलेटेड जितने बिजनेसेस होते हैं जैसे हाँ वो भी आपको अफेक्टेड होते हैं, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी तो क्या हुआ, हेल्थ अवेयरनेस की फिटनेस क्लब्स जितने थे या फिटनेस शॉप्स जितनी थी या वेलनेस शॉप्स थी, उनका बिजनेस थोड़ा इंक्रीज किया। इसी तरह जिम में लोगों ने जाना, एक्सर भाई आप हेल्थ अवेयरनेस आएगी तो फिटनेस आएगी, तो आप सबसे पहले आप सोचेंगे कि हमारा डाइट अच्छा हो, हमारा खान पान अच्छा हो। तो नेचुरली जो फ्रूट्स की शॉप्स थी या वेजिटेबल्स की शॉप्स थी, जूसेस की शॉप थी, जिसको लोग किसी टाइम पे हमें लगता है कि इग्नोर करते थे, जो एक एस्पेक्ट्स है लाइफ का या उस पे, तो जो कि इग्नोरेंट हो, चाहे जानबूझ के अनजाने में हो जाते थे, तो वो अब पीपल्स के कंसिडरेशन जोन में आ गया। और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स चाहे फूड का हो चाहे ग्रोसरीज का हो, उस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जी। तो ये इंटर रिलेटेड है। जी, इंटर रिलेटेड है। तो अब ये क्या हुआ, इसका बिजनेस बढ़ा। जिन जिन चीज़ों से हेल्थ आपकी ठीक रहती है, सेहतमंद रहते हैं, उन सारी चीज़ों का बिजनेस बढ़ा। इसी तरह जिम, लोगों ने जिम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी सारी बॉडी की जितनी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी। योगा करेंगे तो हमारी सारी डीप ब्रीथिंग करेंगे तो हमारी जितनी बॉडी की सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो योगा के लिए इससे रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स थे, मैट्रेसेस थी, उनकी डिमांड बढ़ी। या फिर आपके जिम से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ी। या फिर स्टेडियम की जो मेंबरशिप्स लोग ज़्यादा लेना चाहते थे, जाएंगे वहाँ रनिंग करेंगे, तो मेंबरशिप वाला बिजनेस, मतलब सर्विस सेक्टर में भी बिजनेस बढ़ रहा है और आपका गुड्स सेक्टर में भी, आपका प्रोडक्शन सेक्टर में भी बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब इनका तो बढ़ा, इनका इम्प्रूव हुआ अगर आप में हेल्थ अवेयरनेस आई। किनका घटा, जंक फूड जो बना रहे थे कि लोगों का हम जंक फूड नहीं खाएंगे, अब हम बर्गर की शॉप पे नहीं जाएंगे, अब हम समोसा नहीं खाएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, हम कॉफ़ी नहीं पिएंगे, इससे हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। इसी तरह से जो जंक फूड, फास्ट फूड का बिजनेस घटा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटर रिलेटेड होती हैं और आपस में डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक होती है। और एक इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड, उससे पहले देखा जाए तो इम्पोर्टेंट इस जो हम लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, जहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और नेचुरल भी है, नेचर्स का भी कैलेमिटी आया, एंड जस्ट सी it has a lot of impacts, whether it is health है या general normal lifestyles है, and even the business itself it has affected. अब आप देखिए ना, जैसे आपका नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं तो पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाती है। जैसे बे ऑफ बंगाल में आया तो वहाँ पे जो फिश के रिलेटेड बिजनेसेस हैं, सी फूड से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वो पहले ही अवेयर हो जाते हैं
कि अगर हमने मतलब अपने उसको फॉलो किया, इन्वायरमेंट स्कैनिंग की, फॉलो किया, तो हम अपने बिजनेस को सेव कर सकते हैं, नहीं तो जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इन करेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह ये होता है कि जो ये डायनेमिक इन नेचर होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा डायनेमिक होता है, क्योंकि कीप ऑन चेंजिंग। 10 साल पहले जैसे हम बिजनेस कर रहे थे, हम सोच रहे हैं आज भी हम वैसे ही बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा। हमेशा उस समय टेक्नोलॉजी कुछ और थी, चीज़ें कुछ और थी, अब टेक्नोलॉजी कुछ और है और चीज़ें कुछ और हैं। इसी तरह अगर आप फ्यूचर के 10 साल लेंगे तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इट विल चेंज। तो हमेशा ये एक जैसा नहीं रहता है, मोबिलिटी रहती है और ये डायनेमिक होता है। इसके अलावा इसमें है कि अनसर्टेनिटी होती है। अब जो चेंजेस आते हैं, मान लीजिए डायनेमिक इन नेचर है तो कुछ चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस में हम अनसर्टेन होते हैं कि चेंज जो आएगा बिजनेस में फ्यूचर में वो या अभी वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। आप कुछ पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा ही होगा, हम ऐसा ही हमको प्रॉफिट मिलेगा, इतना ही हम गेन कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ इसका एक करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। एक बिजनेसमैन को हमेशा बिजी रहना पड़ता है अपने बिजनेस के साथ। वो हमेशा प्लानिंग करता है, स्कैनिंग करता है एनवायरनमेंट की, और हमेशा चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को देखता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को वो एकदम उसका इवैल्यूएशन करता है। ये सब उसको करते रहना पड़ता है to be in a competitions, to just to maintain their standards wherever they are. Naturally. Or to, if you want to grow, one has to see what is the new opportunities available, what is the new customers के requirements क्या है, business environment क्या है, या suppose कोई countries में नया rules regulations आ गए हैं, या social कुछ changes आ गए अचानक, तो all of sudden अभी देखिए जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे वॉर हुआ, पीस नहीं है, तो उससे क्या हुआ कि वहां पे चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोगों की परचेजिंग पावर ही घटी, तो लोगों के बिजनेस भी ठप हुए। बहुत ज्यादा बिजनेस वॉर का इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ा। तो ये सारी चीजें, ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी किसी कंट्री का कितना अधिक आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अगर वेदर इट इज अ फ्रेंडली और नॉट फ्रेंडली, यदि कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज वेरी कंड्यूसिव हो, वेरी फ्रेंडली हो, वेरी सपोर्टिव टू द बिजनेस, कीपिंग इन माइंड कि हमारा एक पॉलिसी डिसीजन और समथिंग लाइक दैट इट्स गोइंग टू हैम्पर देयर बिजनेस, सो लाइक दैट दीज एस्पेक्ट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब नेचुरली है, अगर फ्रेंडली या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा तो फॉरेनर इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपके यहाँ एमएनसीज आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और लोकल लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं आपके बिजनेस पे। इसलिए बिजनेस के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हों, चाहे वो इकोनॉमिक हों, कैसी भी हों, सारे फैक्टर्स को एक बिजनेसमैन को ध्यान में रख के अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस तय हो पाती है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एनवायरनमेंट की, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होती है कि सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो रिलेटिव होती हैं। जैसे हमारी कंट्री में जो चीज़ें, मान लीजिए विंटर का मौसम है, हमारे कंट्री में विंटर में मोस्टली टेम्परेचर 0 डिग्री कभी पहुंच गया या -1, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, 4 या 5 के आसपास रहता है। लेकिन अब यही विंटर की कंडीशन अगर आप रशिया के या नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाइए तो -60, -40, या आप यूएस में जाइए तो -20। तो वो जो विंटर के लिए मान लीजिए गारमेंट्स बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, उनका जो होगा वो अलग होगा। और हम जो बनाएंगे, हमको उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो हमें अपने विंटर के मौसम में उस टाइप के कपड़े बनाने हैं। तो एक ये रिलेटिवनेस होती है कि ये नहीं कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरी सिचुएशन में भी उसी सिचुएशन में सिमिलर हम कर दें। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है
बिजनेस, Significance क्या हाँ, है? सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेचुरली है कि आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप फर्स्ट मूवर बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को मैसेजिंग किंग कहा जाता है कि मैसेज करने की दुनिया में आप भी देखेंगे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स या सबसे ज़्यादा लोग जो हैं व्हाट्सएप पे रहते हैं, उसके बाद फेसबुक का नंबर आता है। शायद इन इंडिया में अराउंड 53 करोड़ और अराउंड कुछ ऐसे ही नंबर्स में व्हाट्सएप पे लोग हैं। तो व्हाट्सएप ऐप जब आया तो उस व्हाट्सएप पहले तो हम ईमेल से करते थे, लेकिन ईमेल उतना सुटेबल नहीं था जितना व्हाट्सएप उनको सुटेबल लगा। तो व्हाट्सएप ऐप से रिलेटेड और भी लोगों ने एप्लीकेशंस बनाए और भी बिजनेसमैन ने, लेकिन उनका वो नहीं चला। तो आप ये बिजनेस एनवायरनमेंट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट मूवर बन जाइए। You can grab the यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटी, तब आप जो है बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह तो इसलिए नेचुरली इसका इंपॉर्टेंस है ही बिजनेस एनवायरनमेंट को जो पहचान गया। इसके अलावा जो है जो थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं बिजनेस में जिनके बारे में आपको, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोस्टल एरियाज पे आप बिजनेस कर रहे हैं सी फूड का या फिश का और नेचुरल कैलेमिटीज कुछ आ गई तो आपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग नहीं की या कोई आपने जानकारी नहीं प्राप्त की तो नेचुरली है आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हेल्प करता है, जो आपके यूजफुल रिसोर्सेज हैं जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मटेरियल हो गया, इनको टैप, ये जो सारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं इनको टैप करने में भी कि हम इस एनवायरनमेंट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें कैसी लेबर चाहिए या हमें लेबर कहाँ से मिलेगी, हमें इस एनवायरनमेंट में हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हमको इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से बिगनिंग में ही स्कैन कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने में और इन तक पहुँचने में आसानी होगी। Collect it, to correlate it. जी। And moreover important is these the things what you are mentioning about, that this plays very important role for any business to make it profitable, to make your business successful. Unless until you have a basic knowledge, information about the availability of raw materials, how the friendly your business environment is over there, and how far is it, how is the social cultural environment, how is the local, suppose any cities or local governments, some things rules are which are very friendly, or some things which is very much needed to that particular conditions. For particularly आप जैसे कोस्टल एरियाज में उनके जैसा ही कुछ उनकी नीड है, उनकी डिमांड को हमें स्कैन कर लें और उसके हिसाब से प्लान कर ले, कोई बिजनेस एंटिटी या कोई सर्विस का है तो स्वाभाविक है उसका होगा। एक चीज और भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कंट्री टू कंट्री लाइक जापान है, यूएस है, इंडिया का एक बिजनेस का एक जो नॉर्म्स है, एक बिजनेस का टोटल प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, हाउ दे रिस्पॉन्ड इट। जापान का जो कि एक टीम अप्रोच होता है, एक जो बिजनेस का गोल होता है, इट्स डिफरेंट देन द यूएस। हाउ इज दैट बिजनेस गोल है? जैसे यूएस का अक्सर ये प्रॉफिट मोटिव्स होता है, इससे समथिंग, वेयर एज जापान ऑलवेज ट्रीटेड अ बिजनेस एंटिटी एज अ फैमिली, एज ए टीम में करते हैं, थोड़ा इमोशनल्स उनकी बॉन्डिंग्स होती है। वेयर एज यूएस का है हमेशा गोल ओरिएंटेड है, प्रॉफिट उस पे बेस्ड होता है। वेयर एज इंडिया का जो माहौल, जो इन्वायरमेंट हो, जो सिस्टम्स होता है, इट इज a bit, now it is things are being changed, but otherwise in prior to that it was totally rules and थोड़े bureaucratic approach थे। but वहीं जापान का है, it is a totally related with the emotions, with the, as they always treat as a business also as a family component, कि ये हम बिजनेस को भी हम उसको एज ए फैमिली एंटिटी माने कि हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इससे business is not only for the purpose of benefit, it also helps
to produce something society, to society की wellness का, health का है, emotional है, jobs का है. So they make it as a part of their these things, whether it is a social, cultural. So they are doing business. Both even US is also doing business for the same products here, but their approach is different. It's here is emotional, there is very these things. So coming to now come to the dimensions of the business. Yeah. So first we will take the economic environment. What is the economic environment? अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इट मीन्स पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आएंगी. तो नेचुरली हमारी इनकम, जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. जीडीपी होता क्या है एक्चुअली? जीडीपी इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब आपके कंट्री में जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट पर किस पॉलिटिकल कंट्री का कंट्रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर सपोज हमारे यहाँ एक रिलायंस कंपनी है जो हमारी इंडिया की कंपनी है, और एक बाहर की सैमसंग कंपनी है. दोनों हमारी इंडिया में उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए. दोनों ने अपने प्लांट्स लगाए. तो अब हमारा चूंकि और तो दोनों की जो इनकम होगी वो हमारी इंडिया की जीडीपी में जुड़ेगी, क्योंकि दोनों पर चूंकि इंडिया में ही है दोनों कंपनी, तो दोनों का जो इनकम है उस पर कंट्रोल जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का है. इसी तरह जैसे मान लीजिए हमारा कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई विजय नाम का कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में जॉब करने गया. अब व्यक्ति वो हमारा है लेकिन वो वहां पे कमा रहा है, तो उसके ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो यूएस गवर्नमेंट का है. तो वो उसकी जो भी इनकम होगी वो यूएस गवर्नमेंट में जुड़ेगी, भले वो इंडिया में पैसे भेज रहा हो. तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज play a very important role. Similarly, also just now we have discussed about the important aspects, the dimensions of business is the non-economic activities. Just in the beginning we have discussed. So I think so we have covered in today's sessions about very comprehensive part of how the business environment is, what one should do, what should know before setting up the business. So hope our learners and viewers have understand the concepts about the business environment. If you have any queries, any questions, we will be very happy to answer your queries. So with these words, thank you for watching us. Thank you.